Okay. So good afternoon, everyone. So today, the topic which running in lecture, that is analytical method validation. That is your unit. Sorry, paper 4, unit 4. Okay. So out of that, what we are covering in today's current lecture, we will just revise whatever we are completed in analytical method validation. Then we will move to the next topic, that is IQ, OQ, PQ. Because before that, you should know everything in thorough with these all the terms which we are using in analytical method validation. Okay. So we will discuss. Maybe I ask some question during your lecture. So I hope you will be answer the given question, so it can conclude that you are understand the everything. Okay. So first of all, before the analytical method development, we are already studied, that is the analytical method development, sorry, well validation, that is analytical method development. Then we discuss the term analytical method validation. ठीक है. So method development में हम लोग ने क्या किया था? I just revising just in 5 minutes, okay, to correlate the further topics. So during method development, analysts establish the most suitable step for analytical process that will be lead to information required. It is sample pretreatment, separation techniques, and detection technique. ठीक है. उसके after this information we will develop our particular method for the analysis of particular compound. That is when we are developing the method, ठीक है, when that is when there is an official method is not available in pharmacopoeia, or sometimes the method is available but it is not visible because of some patent or something. Sometimes method is also available but it is not specific to specific sample. That means विटामिन सी एक्सट्रैक्शन का मेथड है लेकिन बायोलॉजिकल फ्लूइड में से कैसे करना है उसका पर्टिकुलर मेथड नहीं है, एंड जो मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है वो अपने सैंपल के लिए यूजफुल नहीं हो रहा है. समटाइम्स जो भी मेथड्स है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसके लिए बहुत जो रिएजेंट लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, दैट टाइम जनरली वी यूज द न्यू मेथड. ठीक है. तो उसके बाद हम लोग ने 4 स्टेप्स देखे थे मेथड डेवलपमेंट के. आई होप यू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर 4 स्टेप. ठीक है. देन व्हाट आर द 4 स्टेप? सैंपल प्री ट्रीटमेंट था, उसके बाद आई कांट रिकलेक्ट, एक्सट्रैक्शन था. पहले सैंपल प्री ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, देन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन था, एंड और एक बीच में स्टेप था, एंड उसके बाद जो था तुम लोग का वो था मेथड वैलिडेशन. So in method validation, we are seeing the specific terms. ठीक है. Okay. So that is specificity, linearity, range, accuracy, precision, detection limit, that is the limit of detection, quantitation limit, robustness, and then system suitability testing. So what is specificity? Specificity is just, that means whatever method you are developed, it is very specific to only your compound. Okay. It is not giving any result, any data, any absorbance or any peak something कुछ भी नहीं with similar compound present in your matrix. मतलब तुम्हारा जो specific compound उसके property से similar कोई भी compound हो, फिर भी अपना जो कुछ भी method develop हुआ है वो स्पेसिफिकली ओनली स्पेसिफिकली अपने कंपाउंड को ही डिटेक्ट करता है. ठीक है. दैट इज योर स्पेसिफिसिटी. लीनियरिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं? लीनियरिटी इज नथिंग बट द व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, सो सेम वे योर एब्जॉर्बेंस और तुम लोग का जो भी रीडिंग्स है इट शुड बी द मल्टीप्लाई द सेम वे. दैट इज नथिंग बट द लीनियरिटी. ठीक है. इट शुड बी शो द स्ट्रेट लाइन इन योर एक्स टू वाई ग्राफ. दैट इज योर linearity. means concentration increase हुआ तो ऑटोमेटिकली तुम लोग का रीडिंग ही उसी रेंज में इंक्रीज होना चाहिए. व्हाट इज अ रेंज? रेंज इज नथिंग बट द इट इज द इंटरमीडिएट रीडिंग बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट. मतलब व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग द एनालिसिस, जैसे मैंने तुम लोग को बोला था कि तुम्हारा 60 mg आ रहा है सैंपल में. ठीक है. लेकिन हमेशा 60 mg आएगा नॉट नेसेसरी. ठीक है. तुम लोग ने बोला है कि ये मेथड से इतना एक्सपेक्ट होता है, लेकिन देयर आर सैंपल के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं मैट्रिक्स के वजह से. तो जो कुछ भी मेथड तुम लोग ने डेवलप किया है उसके लिए तुम लोग को एक पर्टिकुलर रेंज देना पड़ता है. रेंज किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ठीक है. व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द एनालिसिस वैलिडेशन जब करते हो तो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा जब तुम लोग का रीडिंग जाता है तो तुम लोग को पता चलता है कि ये आउट ऑफ रेंज है. इन द सेंस हाउ वी विल डिसाइड द रेंज. जैसे कि सपोज उसके लिए आप 5 to 6 सैंपल एनालाइज करते हैं. जैसे कि सपोज लेमन जूस का करे तो डिफरेंट लेमन का जूस तुम लोग, मतलब डिफरेंट टाइप के लेमन के जूस तुम लोग लोगे. जैसे कि सपोज किसका माइक ऑन है? ओके.
सो दैट इज द रेंज, मतलब जैसे कि लेमन जूस हम लोग ने सॉरी विटामिन सी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द लेमन जूस था, तो हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेमन लेके देखे एंड हर एक हिसाब से हम लोग को पता चला कि अभी पता है ना कौन से सैंपल से तुम लोग को लेना है, एक में से 60 निकल रहा है, एक में से 58 निकल रहा है, तो एक अराउंड हम लोग को पता चला कि विटामिन सी लेमन के अंदर इतने इतने अमाउंट में प्रेजेंट होता है मैक्सिममली, हम लोग ने रिपीट करके देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेमन यूज करके। then you decided the range की particular range हम लोग देंगे कि प्लस और टू माइनस टू, दैट इज योर रेंज एंड इन बिटवीन इसके जो तुम लोग के रिजल्ट्स रहेंगे वो तुम लोग को एनालिसिस के लिए यूज होगा। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मीन्स तुम्हारा एग्जैक्टली एक्यूरेट रीडिंग आना चाहिए, मतलब तुम लोग ने बोला है कि 59 आ रहा है, तो या फिर तुम लोग ने एक पर्टिकुलर रेंज दिया है कि 58 से लेकर 62 के बीच में ही रीडिंग आ रहा है, तो उसके बीच में ही रीडिंग आता है या नहीं ये चेक करना, दैट इज योर एक्यूरेसी, मतलब कितना इंस्ट्रूमेंट इज एक्यूरेट विथ रिस्पेक्ट टू योर सैंपल। व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन मीन्स क्या कि एक ही रीडिंग आ रहा है विच इज रिपीटेडली एग्जैक्टली सेम पॉइंट में आ रहा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रीडिंग से थोड़ा सा अलग है। समटाइम्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेट रीडिंग इट मे बी द सेम, मतलब तुम लोग का एक्सपेक्टेड रीडिंग है, सपोज इमेजिन करो हम लोग ने बोला था उस टाइम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या रीडिंग दिया था मैंने, तो इमेजिन करो कि 10 मिलीग्राम तुम्हारे इसमें क्या विटामिन सी प्रेजेंट होता है लेमन जूस में, ठीक है। तो जब तुम लोग रीडिंग लेते हो 10 टाइम जब भी तुम लोग रीडिंग लेते हो, अगर एवरी टाइम यू आर गेटिंग 10 मिलीग्राम मतलब योर रीडिंग इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेट एज वेल, ठीक है। और एवरी टाइम तुम लोग ने 10 टाइम्स परफॉर्म किया, एवरी 10 टाइम्स तुम लोग को मिला 9.8 9.8, सो योर रीडिंग इज प्रिसीजन रीडिंग इज 9.8 एंड एक्यूरेट रीडिंग इज 10, तो उसमें जो कुछ भी आरएसडी वो तुम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन डिफरेंट हो, सम टाइम एक्यूरेसी का रीडिंग एंड प्रिसीजन रीडिंग सेम भी हो सकता है, और सम टाइम इट्स मे बी द डिफरेंट। why it may be the different? because maybe the your system suitability is not properly, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी है exactly suitable नहीं रहेगा, उसके अंदर थोड़े बहुत वेरिएशन आ रहे हैं, तो उसके वजह से एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के अंदर डिफरेंस बढ़ता है। अगर इंस्ट्रूमेंट एकदम प्रॉपर कंडीशन में है तो जनरली एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत मिनिमाइज होते हैं। सो एक्यूरेसी मत एग्जैक्ट जो वैल्यू वही फाइंड आउट करना, प्रिसीजन मत नंबर ऑफ टाइम्स तुम लोग जितने एनालिसिस रिपीट करते हो उसमें से कितने वैल्यू एग्जैक्टली सेम होते, that is nothing but your precision. What is your limit of detection? Limit of detection is nothing but the lowest concentration of your analyte present in your sample which we can easily detect, ठीक है, that is your detection limit, that is lowest concentration. What is the quantitation limit? That is the lowest concentration of your sample which we can easily quantify. What is the difference between the detection limit and quantitation limit? डिटेक्शन लिमिट के अंदर हम लोग सिर्फ बता सकते हैं कंफर्मेशन है या नहीं, क्वांटिटेशन के अंदर वी कैन एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेट फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट। जनरली उसका लिमिट क्या है डिटेक्शन का, कि तुम लोग का डिटेक्शन का जो पीक या फिर एब्जॉर्बेंस है वो तुम्हारे ब्लैंक से 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, नॉइज टू रेशियो क्या होना चाहिए 3:1। क्वांटिटेशन लिमिट क्या है 1:10, मतलब उसका नॉइज से तुम लोग का जो हाइट है या फिर जो भी एब्जॉर्बेंस है उसका वो 10 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, दैट इज अ लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन। व्हाट इज रोबस्टनेस? रोबस्टनेस दैट मींस वी आर चेकिंग कि how what whenever we are performing small changes in your method, is these particular changes affect your method or not, and then we decide कि how much variation in method is suitable for when you are performing the analysis of particular compound, that is nothing but the robustness of your system. Okay, now system suitability testing means what? We are checking the all the part of the system which are perfectly working and giving the accurate reading with respect to your evaluate method, that is nothing but your system suitability. So these are the all parameters which we are actually perform when we perform the method validation, ठीक है। सिर्फ परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, परफॉर्मेंस के साथ डॉक्यूमेंटेशन जो भी करते हैं वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि when you are performing the specificity exactly what are the documentation are expected to submit, that is your chromatogram रहेगा, RSD रहेगा। अच्छा ये सारे पॉइंट बहुत जिसमें कॉमन है कि बिकॉज हर एक चीज का तुम लोग क्रोमेटोग्राम करते हो। इमेजिन करो इफ यू आर परफॉर्मिंग विद द यूवी, सो डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड आउट द एब्जॉर्बेंस और उसका स्पेक्ट्रल कर्व आता है, ये सारी चीजें जो स्पेसिफिसिटी तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन में आता है। सो
हर एक चीज का एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन लगता है। मैंने ऑलमोस्ट बहुत से स्लाइड में उसके साथ जो भी उनके क्राइटेरिया है एक्सपेक्टेड एंड डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत सारे स्लाइड्स में मैंने मेंशन किए हैं ताकि यू कैन इजीली कोरिलेट। So these are the specific point which we use to analyze, use for a method validation. The next topic which is present in your syllabus, which is थोड़ा सा उसके साथ कोरिलेट रहती है द लीगल रिक्वायरमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर मेथड वैलिडेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली लीगल रिक्वायरमेंट और यू कैन से लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है। ठीक है, सी व्हाट जब भी हम लोग को लीगल या फिर ऐसे कुछ रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन ऐसा वर्ड आता है, सो मेजरली इफ यू आर इन अ साइंटिफिक फील्ड और यू कैन इन अ मतलब फूड या फिर ऐसे कुछ फील्ड में, तो हमारे पास स्पेसिफिकली दो तीन वर्ड्स दिमाग में आते हैं। दैट इज योर WHO, नेक्स्ट फर्स्ट सबसे पहले आता है FDA, देन नेक्स्ट आता है दैट इज WHO और ICH, बिकॉज they are giving the lots of guidelines कि how you are preparing your method development, method validation and जो कुछ भी चीजें उसके लिए तुम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। हाँ, लेकिन अभी लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब ये नहीं कि ये सारा डॉक्यूमेंट तुम लोग को जाके FDA को सबमिट करना है। मीन्स if they are showing कि FDA is providing this particular list for your legal documentation or regulatory requirement during your method validation, इस डजंट मीन कि तुम लोग ने एक नया मेथड वैलिडेशन किया है तो उसका हर एक डॉक्यूमेंटेशन जो तुम लोग ने बनाया है उसका अप्रूवल तुम लोग को FDA से लेना पड़ेगा। ठीक है, हर एक लैब में बहुत सारी चीजें होती रहती है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल मेथड्स, एवरी लैबोरेटरी हैव देयर ओन मेथड, सो डेफिनेटली यू कैन नॉट डिस्क्लोज योर मेथड आल्सो एंड ईच एंड एवरी मेथड के लिए तुम लोग को FDA को रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत नहीं। but there is a particular body or you can say management team present in each and every company, so you have to approve your develop and validate method from your, that is your quality manager or your management team. When they are approve your all the document, that means all the documents are signature or signified with your management teams, then and only then you can use this particular method for your daily routine analysis in your sample। मतलब लैब में कोई भी अगर न्यू सैंपल आता है जिसका तुम लोग को एनालिसिस करना है, सो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द ऑल द कंडीशंस की जो भी सैंपल का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग लगने वाले सारे मटेरियल्स, इक्विपमेंट, जो कुछ भी तुम लोग के केमिकल्स है, आर दे आर अवेलेबल, देन डेफिनेटली you are start developing the method। first of all you will develop the method। डेवलप मेथड को ही तुम लोग को बिफोर वैलिडेशन से पहले तुम हैव टू अप्रूव इट फॉर द मैनेजमेंट टीम कि हम लोग ने ये मेथड डेवलप किया है, दीज आर द क्राइटेरिया, उसके लिए ये सारे स्पेसिफिकेशंस है, सो कैन वी मूव फर्दर फॉर द वैलिडेशन। ठीक है, अभी वैलिडेशन करने से पहले मेथड अप्रूव करना क्यों जरूरी होता है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि वी आर ऑलरेडी डेवलप द मेथड, लेकिन द मेथड में भी वेरी कॉस्टली हो सकता है कि अभी न्यूज अभी जैसे कि तुम लोग को मैंने बोला कि विटामिन सी के लिए तुम लोग ने मेथड डेवलप किया बिकॉज मेथड नहीं था। इमेजिन करो कभी कभी मेथड अवेलेबल होता है लेकिन हम लोग को कोई और इम्प्रूवमेंट वाला मेथड चाहिए, दैट टाइम वी आर डेवलपिंग द मेथड। और समटाइम्स कुछ ऑप्शन नहीं होता है कि इससे सिवा हमारे पास कुछ भी मेथड नहीं है, तो अभी इसका एनालिसिस करना है तो कैसे करना है, एंड यू आर डेवलप द मेथड। बट ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हारा मेथड बहुत कॉस्टली हो, इन द सेंस ये एग्जाम्पल मैंने तुम लोग को काफी बार दिया है कि हाउ यू विल एग्जैक्टली फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ योर मेथड और समथिंग समथिंग। जैसे कि इमेजिन करो कि वो सैंपल का एनालिसिस करके, मतलब जब उस कस्टमर से हम लोग के पास सैंपल आने वाला है एंड सैंपल के लिए वी आर चार्जिंग फॉर दैट कस्टमर के लिए इमेजिन करो 1000 रुपीज। ठीक है, एंड उसके बाद जो भी तुम लोग मतलब तुम लोग के रॉ मटेरियल्स एंड जो भी तुम लोग प्रोसेस करे उसके लिए तुम लोग को चार्ज जा रहा है इमेजिन करो अराउंड 500 रुपीज। ठीक है, एंड जो पर्सन वर्क करने वाला है वो पर्टिकुलर मेथड के ऊपर, वो पर्सन का पर डे का पेमेंट है इमेजिन करो 1000 रुपीज पर डे उसको मिलता है। ठीक है, एंड एक जो भी मेथड तुम लोग ने डेवलप किया उससे एक सैंपल का एक्सट्रैक्शन या फिर एनालिसिस करने के तुम लोग को 4 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो सैंपल का एनालिसिस करने के लिए तुम लोग को इमेजिन करो 500 रुपए गए, ऊपर से 4 आवर्स लगते हैं, मतलब दिन में हार्डली वो 2 सैंपल कर पाएगा एक बंदा। सो 2 सैंपल के लिए तुम लोग का उसका 1000 रुपीज गया, क्योंकि 2 सैंपल के लिए 500 प्लस 1000 रुपीज गया। ऊपर से उस बंदे का पूरा कॉस्ट, जैसे कि 1000 रुपीज कॉस्ट, तो 2000 रुपीज तो तुम लोग के वैसे ही चले गए। ठीक है, तो तुम कंपनी को क्या मिलेगा, बिकॉज जो 2000 रुपए वो लेने वाला है वो 2000 तो वैसे भी उसके इसमें इन्वेस्ट हो रहे मतलब एनालिसिस के अंदर। दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी आर डेवलप मेथड उसके बाद जनरली उसको प्रॉपरली कि वो कितना इफेक्टिव मेथड है या फिर जो भी रिएजेंट तुम लोग यूज करे वो अननेसेसरी तो यूज नहीं हो रहे, ये सारी चीजों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू
before we start the validation, you have to approve this is the particular method, and now we are going for the validation because we are getting the actual result from this method and which is very effective. ठीक है, सो ऐसे तुम लोग मेथड डेवलप करोगे. आफ्टर डेवलपिंग द मेथड यू आर गो फॉर द वैलिडेशन. वैलिडेशन के अंदर तुम लोग को ईच एंड ये सारे पैरामीटर्स है, उसके अंदर तुम लोग को स्पेसिफिकली ईच एंड एवरी चीजें देखनी होती है. इट इज नॉट दैट मच सिंपल जैसे मैंने तुम लोग को बोला है, बिकॉज हर एक चीज का तुम लोग को ट्रिप्लिकेट्स और ट्रिप्लिकेट्स में या फिर 6 इंजेक्शन का रिपीटेडली एनालिसिस करना होता है. उसके बाद जब भी तुम लोग मेथड वैलिडेशन कर रहे हो, बीच में तुम्हारा सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, उसका कुछ भी कैलिब्रेशन नहीं होना चाहिए. जो भी चीजें तुम लोग स्टार्टिंग में यूज किया थ्रू आउट द एंड ऑफ द तुम लोग के वैलिडेशन तक तुम लोग को सेम चीजों के ऊपर काम करना है. ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, वॉट एवर ये एजेंट वगैरह तुम लोग, तो ये सारी चीजें पहले तुम लोग को देखनी होती है बिफोर यू स्टार्ट द मेथड वैलिडेशन. उसके बाद उसके जो भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट आते हैं, तुम लोग को ये सारी चीजों के डॉक्यूमेंटेशन करोगे. यू विल सी दिस ऑल द डॉक्यूमेंटेशन आर फिट इन योर एक्सेप्टेड क्राइटेरिया. जो भी तुम लोग के पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहेंगे. अभी ये क्राइटेरिया कहाँ से डिसाइड होंगे, जब मेथड डेवलप किया था तब वहां पे बताया था कि मिनिमम 60% आता है, या फिर एक्सट्रैक्शन में 60% मिलता है, या फिर ये सैंपल का पीक जो एरिया आता है मिनिमम इतना आता है, आरटी मिनिमम 0.2 या फिर +2 -2 के यहाँ पे शिफ्ट होता है. ये बहुत सारी चीजें होती है जो उन्होंने एक विंडो हम लोग को एक पर्टिकुलर रेंज दिया होता है, और हम लोग को वैलिडेशन में वही चेक करना है कि एग्जैक्टली जो कुछ भी पैरामीटर है एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं नहीं. ठीक है, ये सारे पैरामीटर चेक करने के बाद यू आर कंफर्म और यू आर गिव द अश्योरेंस दैट व्हाटएवर मेथड यू आर यूजिंग फॉर देयर फर्दर एनालिसिस व्हिच इज गिविंग 100% सिक्योरिटी दैट योर रिजल्ट जो भी तुम लोग को मिल रहा है वो 100% अश्योरेंस मिलेगा कि यस दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट और रीडिंग ऑफ योर एनालिसिस. यू आर नॉट डन एनी मैनिपुलेशन, और हमारे मेथड में कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि जिसके वजह से तुम्हारा कुछ एरर आ सकता है या बाय मिस्टेकली कुछ गलत रीडिंग मिले. ठीक है, so this is the assurance you are giving with the this particular method. Okay, so that is your analytical method validation. ठीक है, okay, we now we will come to the little bit discussion about that regulatory document जो मैंने तुम लोग को बोला. तो वो डॉक्यूमेंटेशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि यू आर वॉट एवर द डॉक्यूमेंट वी शुड बी अप्रूव बाय योर मैनेजमेंट टीम. अभी मैनेजमेंट टीम में कौन आता है, मैनेजमेंट टीम में डेफिनेटली आएगा तुम लोग का क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल वाला मैनेजर आएगा. ठीक है, उसके ऊपर जो मैनेजर होता है, ठीक है, जो मतलब सपोज यू आर वर्किंग इन आर&डी सेंटर, तो आर&डी सेंटर में सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल का मैनेजर रहेगा. देन आर&डी का जो सेंटर का तुम लोग का ये रहेगा मेन ऑफिसर, वो तो ऐसे तुम लोग का वहां पे 3 सेक्शंस होते हैं. ठीक है, अप्रूवल के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका ऐसे 3 जनों के साइन लगते हैं मिनिमम. उसके बाद जिस दिन तुम लोग ने मेथड वैलिडेट किया है, डेट ऑफ द वैलिडेशन, डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वैलिडेशन. ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द वैलिडेशन तुम लोग को कुछ रूट कॉज एनालिसिस मिले, मतलब एक्चुअल मेथड जब तुम लोग डेवलप कर रहे थे एंड मेथड वैलिडेशन टाइम में कुछ तो चेंजेस हुए. जैसे मैंने बोला कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाला टेस्ट, तो तुम लोग को एक्सपेक्टेड रीडिंग्स आर 10 यूनिट, बट तुम लोग को आ रहा है 9.8. 10 टाइम्स रिपीट किया तो भी 9.8 आ रहे हैं. तो वहां पे वो करेक्शन होगा ना कि एक्चुअली तुम्हारे सैंपल में से 10 mg एक्सपेक्टेड नहीं रीडिंग्स नहीं आ रहा है, 9.8 ही आ रहा है. सो वहां पे 9.8 प्लस एंड माइनस 2 ऐसे विंडो आएगा, नॉट 10 प्लस एंड माइनस 2. सो दैट इज यूर मेक करेक्शन आफ्टर वैलिडेटिंग अ मेथड. ठीक है, एंड उन्हें बोला कि नहीं हम लोग को 10 ही चाहिए, तो तुम लोग को और कुछ एडिशनल देखो कि एग्जैक्टली 10 मिनिमम 10 mg निकलना ही चाहिए. तो अगेन यू विल गो फॉर मेथड डेवलपमेंट स्टेप एंड ट्राई करोगे कि मैक्सिमम 10 mg निकले. अगर निकलता है इट्स वेरी गुड, नहीं निकलता है तो पता नहीं तुम लोग का मेथड कब डेवलप होगा एंड कब वैलिडेट होगा. इट इज एक्चुअली हैपनिंग इन कंपनी. हम because I can give them my one example whenever I was in a company, so the one sample come to us for the method development and validation is the first sample which I developed and validate method, that is your tetra pack का जो milk होता है. So the customer actually wants that they were adding all the water soluble and insoluble vitamins their milk. They are spike actually, ठीक है सारे, because milk में सारे vitamins present नहीं होते. So अभी चलना चाहिए ना मार्केट में अपना प्रोडक्ट, कुछ तो अलग होना चाहिए. सो उन्होंने क्या किया था, दे हैव एडिशनली एडेड सम विटामिन इन पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन. सो अभी हर एक विटामिन के लिए उनके पास मेथड था, हर एक विटामिन का आंसर. लेकिन अभी देयर आर टोटल 12 विटामिन प्रेजेंट इन देयर मिल्क एंड एक ही मिल्क सैंपल का 12 मतलब 12 टाइम्स एचपीएलसी से इंजेक्शन करना है, मतलब एक ही सैंपल को 12 टाइम्स रिपीट करना. इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी कॉस्टली. सो दे वांट सच ए मेथड जिसमें उन लोग को एक ही मेथड में सारे विटामिन मिलेंगे. ठीक है, बट देयर इज अ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर टू काइंड ऑफ सैंपल, दैट इज योर वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल.
सो हम लोग ने 2 मेथड डेवलप किए थे। एक के अंदर वी हैव एनालाइज ऑल द 6 विटामिन व्हिच दे आर एडेड वाटर सोल्यूबल, दे आर कम विद इन द सिंगल मेथड। मतलब एक बार सैंपल रन किया तो उस सैंपल में तुम लोग के विटामिन सी, विटामिन बी 12 के सारे विटामिन, विटामिन 9, ये सारे विटामिन एक ही क्रोमेटोग्राम में मिल रहे, ठीक है। एंड नेक्स्ट दैट इज योर विटामिन डी एंड ए एंड के लिए हम लोग ने ये 3 के लिए अलग मेथड डेवलप किया। लेकिन अभी इमेजिन करो कि एक पैरामीटर के लिए एनालाइज करना है, ये सारे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सारे 6 पैरामीटर के लिए करना, मतलब विटामिन सी भी दिखना चाहिए, विटामिन बी 12 भी दिखना चाहिए, विटामिन बी 6 भी दिखना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा था कि लीनियरिटी में विटामिन बी 6 बैठ रहा है लेकिन विटामिन बी 12 नहीं बैठ रहा है। समटाइम्स हैपन कि 2 बैठ रहे, सारे पांचों के पांचों बैठ रहे, लेकिन 6 वाला विटामिन डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है जो भी मोबाइल पे यूज करे। तो उसके हिसाब से देन वी हैव टू चेंज उसका ग्रेडियंट सिस्टम वगैरह। फिर एक्यूरेसी में सारी चीजें एक साथ बिठाना, उसके बाद उसके लिमिट चेक करना, इट एक्चुअली द टास्क। जो कि जितनी चीजें सिंपल दिखती है उतनी वो सिंपल होती नहीं, क्योंकि तुम लोग को उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाना है। एंड यू नो दैट एचपीएलसी की तुम लोग का सिंगल पीपीएम में डायल्यूशन के भी चेंजेस होते हैं, दो यू आर गेट अ लार्ज चेंज इन योर एरिया अंडर। So this is the actually scenario when actually you are develop and validate a method. So उसके अभी जो तुम लोग का next topic है that is your liquidity requirement, उसमें तुम लोग को exactly करना क्या है, because this is I post on your Google assignment. I will not अभी तक मैंने post नहीं किया लेकिन I will post it. Definitely उसके लिए मैं टाइम दूंगी क्योंकि तुम लोग का पहला का assignment अभी भी pending है। इसमें मैंने सारे पीपीटी के अंदर अगर आपने देखा है तो हर एक के अंदर मैंने उसका क्या बोलते हैं what they require for documentation and accepted criteria ऐसे mention किया। So what is your aim? You can search on internet also and just find out कि whenever your method is validated, after that whenever you are performing the documentation, so what are the regulatory requirement you are required for documented purpose। मतलब अभी इसमें वो सारी चीजें आएंगी कि तुम लोग का सैंपल कहाँ से आ रहा है, विच काइंड ऑफ सैंपल, उसके बाद जो तुम लोग ये मेथड डेवलप किए तो डेवलप मेथड के कौन से डॉक्यूमेंट तुम लोग ये रखोगे। देन जब तुम लोग मेथड वैलिडेट कर रहे हो तो हर एक टेस्ट के लिए तुम लोग के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद जो भी तुम लोग स्टैंडर्ड परफॉर्म ले रहे हो तो स्टैंडर्ड के क्या क्या एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट रहेंगे जो तुम लोग एनालिसिस के यूज करोगे। ऐसा तुम लोग को एक असाइनमेंट बनाना है। डेफिनेटली ये भी मैं क्लियर करती हूँ कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन नॉट इज दैट मच सिंपल ऑल्सो। ये टॉपिक में तुम लोग को सिखाऊंगी, लेकिन व्हाट आर द लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर, लेकिन ये सबसे लास्ट में लूंगी मैं, मतलब सारे जो ये सब टॉपिक्स है ये पर्टिकुलर यूनिट के, उसके बाद लास्ट में आई विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक। टिल यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट कि तुम लोग के हिसाब से, मतलब अभी तुम लोग को खुद को पता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली मेथड डेवलपमेंट वैलिडेशन, तो उसके हिसाब से सर्च ऑन इंटरनेट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड मेक वन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर तुम लोग के लिस्ट रहेंगे कि व्हाट आर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वायर फॉर योर एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, वो तुम लोग को मेंशन करना है। एंड जो कुछ भी उसके अंदर करेक्शंस हो गए वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। So here we are completing the your complete method validation का सब टॉपिक which is, मतलब ये पर्टिकुलर यूनिट में से ये एक टॉपिक एंड IQ OQ PQ ये दो टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडस्ट्री में अगर तुम लोग जाते हो तो अगर यू आर वर्किंग इन एनी इंस्ट्रूमेंटल लेबोरेटरी, तो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला जो बेसिक काम होता है, मतलब जिसके ऊपर तुम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो यही है कि व्हाट इज एग्जैक्टली एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। तो उसके लिए इसके अंदर जो भी टर्म्स है वो तुम लोग को प्रॉपरली थोरो होना चाहिए। मैंने जानबूझ के ये टॉपिक थोड़ा स्लोली लिया है एंड ट्राई आई आल्सो ट्राई कि आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म्स अलोंग विद द लाइव एग्जांपल, ताकि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सी सिर्फ मतलब ये क्या बोलते हैं रट्टा करके या फिर सिर्फ पढ़ के ये टॉपिक फायदा नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में जितना रहेगा, मतलब मैं 1 महीने के बाद भी तुम लोग को बोलूं कि आई जस्ट वांट टू टेक द टेस्ट ऑन योर एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, सो यू शुड नो कि एग्जैक्टली उसके अंदर कौन से टर्म्स है। उसके लिए तुम लोग को फिर से पेजेस पलट के रिपीटेडली पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ये टॉपिक दिमाग में फिट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दैट इज योर मेथड वैलिडेशन। So I will stop here and I will continue your IQ, OQ, PQ in your tomorrow's lecture. Because I don't want to continue today only because आज तुम लोग को पर थोड़ा सा बर्डन हो सकता है ये कंप्लीट होने का। So an IQ is a little bit completely different phenomena. So better I will start freshly on tomorrow this particular phenomena. So I will stop here only.
along with the method validation. Still, anybody is having, because hardly 2 minutes are left. So anybody is having any doubt with respect to this particular terms, और तुम लोग को कुछ आगे पूछना है, so the session is open for your discussion, कि exactly क्या क्या तुम लोग को discuss करना है, कुछ additional knowledge देना है, या फिर you want to ask some doubt with respect to this method development and method validation, please you can free to ask. Nena Raghav say no doubt, ma'am. Ma'am, the assignment should be the handwritten or it's typing. No, definitely your assignment is a typing format. Of you, if you want to write in handwritten, तुम लोग handwritten करके फोटो भी पेस्ट कर सकते हो. See, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, जैसे गीतांजलि मैम ने बोला था कि you may be easily copy paste and ठीक है, लेकिन कॉपी पेस्ट करने के लिए तुम लोग को भी रीड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट, बिकॉज जो टॉपिक मैंने तुम लोग को असाइनमेंट के लिए बोले हैं वो तुम लोग डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते, तुम लोग को पॉइंट वाइज लिखना है कि what are the legal document number 1, document number 2, document number 3, document number 4. So definitely you have to read the material. ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी मतलब एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशंस के आई हैव लॉट्स ऑफ पीडीएफ जिसको रिफर करके, एंड देयर इज अ वन बुक आल्सो विथ मी. अभी बुक तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आई हैव एक सॉफ्ट कॉपी ऑफ वन बुक. along with that I have lots of pdf जिसको रिफर करके एंड along with my knowledge मैंने ये ppt बनाया था. So definitely today I will share that all the PDF and that books on your Google Classroom. Please go through that particular book, क्योंकि अभी तुम लोग के पास फ्रेश तुम लोग ने पढ़े हैं सारे टर्म्स, तो अभी तुम लोग ये 2-3 दिन में रीड करोगे तो तुम लोग के दिमाग में फाइनली बैठ जाएगा. एंड इट विल बी नॉट दैट मच डिफिकल्ट व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम. मतलब एग्जाम पे भी इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगी. स्पेसिफिसिटी एग्जैक्टली क्या है, कैसे डायरेक्टली पढ़ने जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल अगर पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी जाएगा. तो वो सब कुछ मैं पोस्ट करती हूँ, उसको पढ़ो एंड देन आई विल ऑल्सो पोस्ट द असाइनमेंट. ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट रिफर करो एंड गिव दैट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट. ठीक है, ओके. So thank you so much for listening me, and we will definitely meet tomorrow on your Google Meet. So please download, if you are working with the mobile, then please download the Google Meet on your mobile. And if you are working with the PC, so it's easy. Just if just you require just Google Chrome in your PC, so you can directly click on the link and the lecture will be the continue. And वहाँ पे ये सिर्फ 40 minutes का टाइम वाला नहीं रहेगा, तो I hope कि हम लोग एक टॉपिक प्रॉपरली इजीली कवर कर पाएंगे. जैसे ही we are not taking more than 1 hour. Definitely I don't want to bore you, but definitely it may be ऐसे limited नहीं रहेगा कि बीच में ही हम लोग को टॉपिक कट करना पड़े. ठीक है, चलो, thank you so much and bye.